Hello friends, namaskar. नमस्कार। Welcome, welcome back नमस्कार दामू to. भाई। Thank you, Vijay bro. I remember our interaction in California. We ये used to play volleyball for 2 years, and people know me. I was in California, Pleasanton. So guys, please meet my friend Vijay. I will give him introduction in a different way, but he's my Vijay Bhai, and people call me Damo Bhai. So we have a very family relation. We used to live together in Pleasanton area. We used to play volleyball almost every Friday, Saturday, Sunday. It was a wonderful time I had with California tenor, and yeah. So today this topic was suggested by Vijay, attitude, a mental position. So I love this topic, and whatever you do, everything we should have some attitude in place, and we'll talk about what is positive, negative attitude. And I remember my childhood days, especially high school days. Let me give you two example quickly. Those days साइकिल में हम लोग जाते थे, एंड साइकिल भी नया नहीं होता था, पुराना होता था. एंड आई रिमेम्बर माई साइकिल में कभी कभी ब्रेक नहीं होता था, बट एनीवे हम लोग तो हाईवे नहीं जाते थे, सो गांव में विलेज में छोटा सा टाउन में जाते थे. तो कभी कुछ होगा तो हम लोग उतर जाते थे, राइट. सो आई रिमेम्बर एक राइट। दिन क्या हुआ, मैं साइकिल में जा रहा था, देन आई सडनली फाउंड ए बेबी बॉय क्रॉसिंग द रोड. एंड मुझे पता था कि साइकिल में ब्रेक नहीं है और मेरा स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा था. तो सडनली क्या हुआ, आई मीन अगर आप जा रहे हो, कोई बेबी आ रहा है, तो नो दी एटीट्यूड टुवर्ड्स ए पर्सन अलग हो जाता है, राइट. सो मैंने क्या किया, सडनली साइकिल से उतर गया. वाइल गेटिंग डाउन मैंने साइकिल को राइट साइड धक्का दे दिया. सो साइकिल चला गया राइट साइड, मैंने लेफ्ट साइड में गिर गया. उसके बाद फटाफट जाके बेबी को पकड़ लिया. देन आई मीन ये आफ्टर दैट स्टोरी then this is one attitude I can say, right, towards a baby on street. And second, again from a village or little town background. तो हम लोग को तो टाइम पे इतना नहीं था कि वो टाइम पे कहाँ स्वच्छ भारत था. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट प्री 1990, राइट. हम लोग जाते थे इधर पॉन्ड, राइट। तालाब या नदी के किनारे जाते थे नहाने धोने के लिए, राइट. एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन इट वाज लिटिल ऑकवर्ड, बिकॉज रेनी सीजन में जाओगे ना, एंड समटाइम्स आल्सो हम लोग खाली पाँव में जाते थे. चप्पल को इतना सुविधा नहीं था. आई मीन फॉर मी राइट। इट वाज द प्रिविलेज, नथिंग कंप्लेन. सडनली सांप आ जाता था, कोई जानवर आते थे, कैसे, ओह माय गॉड, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड, राइट. सो या these are two examples. Let me hold my thoughts. So I will give you perspective of mine, and then I will introduce my friend Vijay. Then we'll go into the deeper conversation with Vijay. So if you see in social psychology, attitude is an evaluation of an object, right? Ranging from extremely negative to extremely positive. The two examples which I have given. An attitude can belong to both or either a conscious or a unconscious mental state, right? राइट। If I put it in a psychology state, like I was discussing with my daughter earlier on mental wellness, an attitude refers to a set of emotions, beliefs, and behaviors towards a particular object, person, thing, or event. Even if you see, attitudes are often the result of experience or upbringing, right? How we are getting up brought, राइट। right? I mean, that also matters. How you actually mold your kids, how you actually upbring your kids, right? And they can have a powerful influence over their behavior and affect how people act in various situations. So, like I have given an example of two situations, right? And the attitude of a person is determined by a psychological factors like ideas, value, beliefs, perception, right? Perception is nothing but मैंने सुना किससे, and I'm actually reacting or acting accordingly, right? So एग्जैक्टली। all these have a एग्जैक्टली। complex role in contributing to a person's attitude. And values are ideals, like guiding principles in one's life, overarching goals that people strive to obtain. So there are many factors that influence attitude, such as social factors, family, personal experience, directional instruction, prejudices, media, religious, educational institution. Even sometimes also your physical factors, economic factors, occupations, where are exactly you are, right? The behavior of a, let's राइट। say,
police person to a politician to a teacher varies, right? In corporate life, if you talk about the behavior of a HR, talent acquisition to business, your manager or a marketing guy, it's all directional, right? We are all directed to, Right. we are just actor, right? So social factors are also influenced by individuals and how they are expected to behave in a social settings, referring to social norms. You know, COVID, I mean, it has totally changed the scenario, the way we interact each other, the way you behave each other, right? Now we are totally in a different situation, right? Right? So family has a huge impact on an individual's attitude, whether developing a positive or negative attitude, right? Right. So we will talk about all the good things about it, how we all, including the students, the kids in school, high school, we'll give a lot of example. So let me take this opportunity to formally introduce my friend Vijay. He is Dr. Vijendra Karpatne. He's a senior integration consultant in one of the top multinationals, IT major. As a technology and cloud practitioner, my friend Vijay contributes towards middleware technology under the umbrella of cloud application services. His out-of-box thinking to implement these solutions has left remarkable impact on product users. His capability has solved number of times to save huge amount of clients' money. He's actually saving cost for his customer, right? So his contributions were well appreciated by his presentation before various customers. He has published several articles in international journal and presented his papers on several platforms to demonstrate his idea. Customers seek his help in order to implement the solution in most effective and simple way. He makes the complex middleware solutions to look very smooth while implementing for users. In IT corporate world, my friend Dr. Karpatne has been providing the unique solutions for his clients in various applications for many years. Currently, he plays a role of senior integration consultant for 7 different regions in North and South America. Yeah, so he has more than 17 years experience into IT corporate, handled many various projects in healthcare vertical, and he started his career as a software developer in India and transitioned into US. And yeah, he handled critical healthcare project. Good to know that. I mean, he has a bachelor's, master, doctorate degree in computer science. My friend Vijay helps freshers to get ready for IT industry. Guys, again, repeat. I saw a couple of his webinars. So he talked to IT freshers, engineering colleges, and he makes them ready how the fresh graduates, can actually face the corporate life. And his IT industry readiness training has helped a lot of freshers to get into top MNC. That's all good about my friend Vijay. Vijay, I think whatever you are doing, awesome, and you are actually contributing back to society. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Damu bhai. Yeah. So let me take a pause, and I want to hear from you. How is your journey so far? Yeah. And give me a little perspective and attitude. Then we will have Bartalap. Yeah. So first of all, thank you so much, Damu bhai, for considering me for this talk. And as you said that I have spent 17 years in IT industry, and I have huge experience in order to deliver some product to customers. And I have worked with lots of big managers here in India and United States as well. So one thing in common, what I noticed is your attitude is something which will take you higher or it will take you down. So attitude is something you need to carry every time. हिंदी में भी हमारा एक सेइंग है दामो भाई कि हम कहते हैं ना कि नित गौरव का यह ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, राइट? तो एक बहुत बड़े कवि हैं, वो कह के गए थे, नित गौरव का यह ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। तो हमें एटीट्यूड को ऑलवेज कैरी करना है। बस एक थिन लाइन है जिसे हमें समझना है कि एटीट्यूड क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड है या निगेटिव एटीट्यूड है, या फिर आपका एटीट्यूड कैसा भी हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप निगेटिव एटीट्यूड से भी
यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, तो आपको चेंज करना चाहिए कि आप कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड्स की तरफ अपने आप को लेकर जाएंगे। तो दैट इज द ओनली थिंग विच विल टेक यू हायर। ये Yeah. मेरा एक्सपीरियंस है। Absolutely. तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे लाइफ में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं अपना काम शुरू किया था, मैंने अपना काम एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आई वॉज अ बिग जीरो, as everybody, right? Everybody does in first year of their, Absolutely. when they enter MNCs. So मुझे कुछ पता नहीं था, बहुत कुछ जानता नहीं था, उतनी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, आईटी इंडस्ट्री कैसा होता है ये भी पता नहीं था, कॉलेजेस में जो पढ़ा जाना बस उतना ही। लेकिन एक सीखने का जो, कुछ सीखने, नया सीखने का जो होता है जज्बा, वो आपके एटीट्यूड से आता है। Absolutely. तो मुझे ऐसा लगता है कि एटीट्यूड क्या है कि आपके एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, कुछ करने की एबिलिटी को जो इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज योर एटीट्यूड। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका एटीट्यूड उस अच्छे काम को करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आप बुरे काम में लिप्त हैं, इफ यू आर इंडल्ज इन सम रॉन्ग एक्टिविटीज, तो आपका एटीट्यूड उस गलत काम को करने के लिए आपको बढ़ावा देगा। तो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right. तो ये भी जरूरी है कि एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और ये एक स्टूडेंट सीरीज आप चला रहे हैं, विच इज वेरी गुड। मेरे स्टूडेंट्स भी अगर देखें, आपके थॉट को देखें, तो उन लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा, दे विल गेट बेनिफिटेड। आप आपके चैनल, आई हैव रिकमेंडेड योर चैनल, आप जिस तरह से बात करते हैं, सी टेक्नोलॉजी एक तरफ और हमारा एटीट्यूड, ह्यूमन बिहेवियर ये एक तरफ है। हमने और आपने सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये आईटी इंडस्ट्री में हम लोग टेक्नोलॉजी की तो बात करते हैं, बट ये एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर ही है एक ऐसा चीज है जो हमें सबके सामने आगे लेके जाता है। True. अगर हम बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन हमारा एटीट्यूड बहुत खराब है किसी के भी, अपने टीम के प्रति, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? और आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। बराबर। ठीक है, तो हमारे जैसे बहुत लोग बैठे हैं, राइट, इंडस्ट्री में। हमें बाहर करके दूसरे को ले आ सकते हैं। यू विल बी किक्ड आउट वेरी सून। We will be easily replaced by any time, anybody. Yeah, absolutely. राइट। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एटीट्यूड क्या है और क्यों क्यों इतना हमें एटीट्यूड को कैरी करना चाहिए। मैं 2013 से रिक्रूटमेंट करता हूं अपने कंपनी के लिए, अपने टीम्स के लिए लोगों को रिक्रूट करता हूं। तो 2013 से जब मैंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया, मैं डिफरेंट लोगों को इंटरव्यू करता हूं, ये बात करता हूं, जानता समझता हूं। मैंने बहुत लोगों को ओके किया, ही इज टेक्निकली ओके एंड जस्ट ब्रिंग हिम इन ऑन बोर्ड इन आवर टीम। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाकर पर्सनली बोला, आई विल नॉट टेक द नेम, बट मुझे उन्होंने पर्सनली मुझसे बोला कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट एनालाइजिंग वेदर दिस पर्सन इज, whoever you are interviewing, वो आदमी वेल मैनर्ड है या नहीं, उसका एटीट्यूड कैसा है, यू हैव टू एनालाइज। अगर वो टेक्निकली फिट है और एटीट्यूड उसका गड़बड़ है, इफ यू हैव डाउट कि उसका एटीट्यूड सही नहीं है, देन यू डोंट से ओके, डोंट सेलेक्ट दैट गाय। तो एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट बन गया। मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एटीट्यूड ही ऐसा है जो आपको कैरी करना चाहिए और अपना अपना ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो सेल्फ स्टीम है उसका ध्यान ऑलवेज रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, काम करने वाला हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, मैं तो बहुत सारे फ्रेशर्स से डील करता हूँ, एक वीक में 50 फ्रेशर से बात करता हूँ। तो मैं देखता हूँ वो एटीट्यूड उनका अच्छा होता है, पोलाइट होता है, लेकिन कभी कभी वो जब इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो वो हद से ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं, राइट? दे प्रिटेंड टू बी वेरी नाइस, वेरी ओबीडिएंट, लाइक हाँ, तो वो सब चीजें होती है, लेकिन हमें ज्यादा भी नहीं होना है और बहुत खराब भी नहीं होना है। एक राइट अमाउंट ऑफ एटीट्यूड यू हैव टू कैरी एवरी टाइम। तो ये मेरा मानना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, तो आपका एटीट्यूड
ऐसा होना चाहिए कि आपके अगल बगल के लोग, आपके मैनेजर्स हों, आपके कलीग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली जो भी हो, आपके बिहेवियर को अप्रिशिएट करें और Absolutely. आपके थिंकिंग को अप्रिशिएट करें कि हाँ, ये चेंज ला सकता है, इसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, है। ये डेफिनेटली ही कैन ब्रिंग सम चेंज। तो ये मेरा मानना है, बेसिक थॉट मेरा एटीट्यूड के ऊपर नो ये नो है। नो, आपने तो सही कहा। एंड आपने सही कहा कि मैं स्टूडेंट सीरीज अभी चला रहा हूँ, सो मोस्टली टारगेटेड इज फॉर स्टूडेंट्स, ओके, immaterial of any grade, you know, starting from your grade 1 to masters or PhD holders. I mean, of course, the moment you will jump into the corporate ladder, attitude plays a major role. And you know, corporate is actually is a people, right? I mean, we call it people, process, and technology, right? So people राइट, and process, then technology comes later, right? So people means people with attitude, right? Rightly you said. एंड आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कुछ सवाल है, मैं आपसे पूछना जी, चाहता हूँ। अगर आपका पास भी कुछ एब्सोल्युटली, सवाल है तो मुझे कभी भी आप पूछ सकते हैं। दिस इज नॉट ए डेफिनेटली, इंटरव्यू, है या, वार्तालाप है, जस्ट गॉसिप है। यस, यस, एंड मुझे बताइए विजय जी, सो व्हाई एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, आपने बताया। फिर भी अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक एग्जांपल दे सकते हैं, और एक भी मे बी सोशल सर्विस या सिटीजन सर्विस का एक एग्जांपल दे सकते हैं, तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एटीट्यूड। ओके, या, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दामो भाई। सो देखिए, इस इन सभी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, इनका आंसर कभी राइट या रॉन्ग नहीं होता है। हम्म। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा, दूसरे लोग अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे सामने में। तो हाँ जी, एटीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है विच कैन गो वेरी लॉन्ग, वी कैन डिस्कस फॉर एन आवर्स एंड आवर्स। एब्सोल्युटली। लेकिन मेरा जो जो समरी है, जो मेरा थोड़ा एक नरेटिव सोच है इसके बारे में, एटीट्यूड अगर नहीं है तो नो लाइफ, नो एटीट्यूड नो लाइफ, लाइक या। राइट। सो अब हमको ये देखना है हमें कि एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव कैसे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही डम्प एग्जाम्पल लेता हूं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं। अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है तो आप, यू आर नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत डम्प एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि हाँ जी। जैसे एक फ्रिज है आपके घर में, सबके घर में फ्रिज होता है, राइट। हम्म। अगर फ्रिज के अंदर हम पावर सप्लाई रोक दें तो उससे बड़ा डब्बा कुछ नहीं है करेक्ट। हमारे घर में, हाँ जी। राइट। उसी तरह से अगर हम अपने अंदर से एटीट्यूड को हटा दें तो हमसे बड़ा निष्काम आदमी कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। राइट। वी हाँ। आर गुड फॉर नथिंग अगर एटीट्यूड नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो यू कैन डू वंडर्स। आपको कैरी करना है एटीट्यूड, इसलिए इसलिए भी एटीट्यूड का होना जरूरी है आदमी में, हम्म। और सब में होता है। जैसे गॉड क्रिएटेड ह्यूमन, राइट। हम्म। मुझे दो आंख, एक नाक और सब कुछ दिया, राइट। हाँ जी। उसी तरह एटीट्यूड भी दिया। ये हम पे है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा एटीट्यूड अभी सोया है या जागा है। हाँ जी। सो यू हैव टू अवेकन योर एटीट्यूड, जगा के रखना होगा। अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर एटीट्यूड नहीं है तो नो लाइफ। एब्सोल्युटली। फ्रिज का एग्जांपल लिया मैंने। अब हम्म। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, हम्म। अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जैसा आप जानते ही हैं कि आपको मल्टीटास्किंग करना होता है, राइट। हम्म। वहां आपको डिफरेंट टाइप ऑफ, आपको दिखाना पड़ता है कि यू आर ऑलराउंडर, या। राइट। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तो उस एबिलिटी को कौन लेके आएगा बाहर? योर एटीट्यूड। एब्सोल्युटली। एटीट्यूड विल इन्फ्लुएंस योर एबिलिटी टू वर्क, या। राइट। अगर आप सोना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड सोने वाला होगा, और आपका एटीट्यूड आपको सोने के लिए भेजेगा, जाओ सो जाओ, हाँ जी। जाओ हाँ सो जी। जाओ। हाँ जी। हाँ इसी जी। तरह से अगर आप अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली, इसलिए कुछ भी करने के लिए एटीट्यूड का एटीट्यूड होना चाहिए। जरूरी है, ऐसा एब्सोल्युटली। ऐसा मेरा मानना है। अभी आपका एग्जांपल सुनने के बाद ना, समथिंग ट्रिगरिंग टू माय माइंड, यू नो, आई ऑलवेज से दैट इसी वी शुड हैव ईगो। ईगो मींस व्हाट? या, लेट्स से हे, आई एम दामोदर, दिस इज माय ईगो। Hey, I love myself. This is my ego. Self-care is my ego. If I love myself, if I care myself, definitely I will look after everything. My appearance, my physique, my dress, right? The way I talk, the way I present myself, the way I walk, the way I talk, right? So इतना तो ईगो होना चाहिए। इफ यू, राइट, लेकिन जैसे आपने बताया ना, अगर एटीट्यूड जीरो हो जाएगा, देन यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। फ्रीज फ्रीज नहीं राइट, रहेगा।
यू नो. सो Right. अगर ईगो भी इतना ही होना चाहिए, यू नो, इफ Correct. यू add more ego, that means you are adding more sugar, and adding more Right. sugar, we all of know, I mean, what happens, right? So well said. जैसे एटीट्यूड होना चाहिए, हम बोलते हैं दिस मैन कम्स विथ एटीट्यूड, दैट मीन्स उसका थोड़ा कुछ है, मतलब यस द मैन Yeah. ही कम. जैसे हम Exactly. लोग, अगर हमारा इतना बड़ा राष्ट्र है भारत, यू नो, का प्राइम मिनिस्टर को देखिए, यू नो, अगर नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, ही कम्स विथ some attitude, right? Some And attitude. Right. that's why he's a people leader, he's a world leader, you know. Right. So yeah, so let me not take the topic, divert the topic. इसलिए हाँ जी, हाँ जी. या इसीलिए इसीलिए कहा जाता है, जिसलिए मैंने स्टार्ट किया इसी लाइन से कि नित गौरव का यह ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। काम करेंगे, हाँ जी, झुकेंगे, लेकिन पूरा नहीं झुकेंगे। पूरा नहीं झुकेंगे. हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, ना झुकाकर ना उठाकर, आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। तो यही है कहने का सार, यही है। दैट्स इट। On a lighter note, Pushpa style. यस। पुष्पा स्टाइल। Okay, I mean, this is just a lighter note, nothing related to या Pushpa, or no, we are not here to promote Pushpa. I mean, Pushpa has done राइट। millions of business. Okay, Vijay bhai, coming back to the second question, just या coming to श्योर। my mind, can you please give few example how we can actually encourage student to have positive attitude, right? इसी आपने बताया कि corporate में क्या होता है, social में क्या होता है, given a live example, right? So how we can actually encourage them, you know, जैसे मैंने बताया कि these are upbringing, घर से ही शुरू होता है, नो, जैसे कि राइट। we always say that mom is the first teacher, उसके बाद पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्कूल आते हैं, सोशल, नेबर, देन कॉर्पोरेट, आई मीन एजुकेशन, एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट, राइट? सो स्टूडेंट लोग को हाउ वी कैन एक्चुअली गिव देम एक एनकरेजमेंट नाउ सो दैट दे आर रेडी फॉर टुमारो. देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा दामो भाई, कि हाँ जो जी. मैं अपने स्टूडेंट के साथ बात करता हूँ फॉर दिस अपब्रिंगिंग, मैं क्या करता हूँ, जैसे एग्जांपल, कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड को किस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना जरूरी है, राइट? जरूर, एब्सोल्युटली. तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या, कि हमें अंदर से हैप्पीनेस है, सेल्फ मोटिवेटेड है, राइट? तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम कर सकते हैं। कर सकते हैं. तो मेरा कहना ये है, ऑलवेज मैं यही कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, किसी को भी, कि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके एक्शन से बेस्ड होना चाहिए। एक्शन, आपका जो एक्शन है उससे ड्राइव होना चाहिए, उससे सपोर्ट मिलना चाहिए आपके एक्शन से, न कि आपके सोच से। मेरे कहने का ये मतलब है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, कंपटीशन में पास करना, यही है। तो मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट ये सोचकर खुश है कि मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा, वो भी सेल्फ मोटिवेटेड है, हाँ राइट? जी. और यस, अंदर से खुश भी है, कुछ भी और है. पॉजिटिव एटीट्यूड भी है इसमें, राइट? तो और ये सिर्फ सोच के खुश हो रहा है कि मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा, अच्छा करूंगा। और दूसरा स्टूडेंट जो है, वो क्या करता है, वो भी सेल्फ मोटिवेटेड है, अंदर से खुश है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन वो रोज एक चैप्टर पढ़ता है, रिवीजन करता है, फिर वो खुश होता है कि हाँ, फिर मोटिवेटेड होता है कि हाँ, आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, कल दो चैप्टर पढ़ूंगा, फिर इस तरह से खत्म करूंगा सारे हाँ सिलेबस जी, को। हाँ जी. लेकिन पहला वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो सिर्फ सोच के खत्म कर रहा है, खुश हो रहा है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, कौन कौन सा पॉजिटिव, दोनों के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन कौन सा अच्छा, जो काम कर रहा है वो अच्छा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके एक्शन से सपोर्ट मिलेगा, आपके एटीट्यूड को आपके एक्शन से सपोर्ट मिलेगा, तो वो ड्यूरेबल बनेगा, एब्सोल्युटली, राइट? वो एब्सोल्युटली, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगा। लेकिन एब्सोल्युटली. अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, पॉजिटिविटी रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स रहेगा, सिर्फ सोचेंगे, तो आपका एटीट्यूड आपके साथ लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप एक टाइम के बाद रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, राइट? अगर आप सिर्फ हाँ जी, सोचते रहेंगे, कुछ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो एब्सोल्युटली, इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूं कि योर एटीट्यूड शुड बी बैक्ड बाय योर एक्शन, नॉट बाय योर थॉट। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली. इसलिए मेरा कहना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि आपका जो एटीट्यूड है, अगर उसमें पॉजिटिविटी है, तो उसको हम किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं, अपने साथ लेके चलेंगे साथ में, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन धीरे धीरे, राइट? एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली. इसलिए इसलिए
यही मेरा मेरा सोचना है आपके इसी सवाल पे। नहीं, बढ़िया है। मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहता हूँ। नो, वी ऑलवेज से दैट सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। जैसे एक साइकिल हो या बाइक हो या स्कूटर हो, कार हो, हम लोग खुद क्विक स्टार्ट करते हैं, है ना। आजकल ऑटो स्टार्ट हो गया, आ या गया, है ना। दैट इज राइट फाइन, बट राइट ऑटो स्टार्ट इज आल्सो यू हैव टू click a button. That means you are again self starting, right? You are kick starting. So you राइट are the kick starter of your life. And खुद को मोटिवेट करना चाहिए, है ना? इसलिए हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ स्टार्टर, एनर्जेटिक, यू नो, aggressive guy, you know, I can do anything, right? So if the moment this attitude comes, you know, positive attitude, I mean, you can do wonder. अगर भी कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है, the moment you say you can do it, that means आप रिसर्च कर लोगे, पढ़ लोगे, you know, राइट इससे पूछ लोगे, right? Then you can definitely do it. राइट अगर सब्जेक्ट को आता नहीं है, आप बोलोगे कि ये नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, that means you are getting into a different negative attitude. नहीं आता है, करेक्ट yes I can do it, that means अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लो, कर लो, you know. So yeah, well said, well said. या नहीं, या और एक सवाल मेरा मन पे आ रहा है. So let's say या we talk about attitude, positive, negative, different, right? Or social attitude. So how to create a winning attitude in life? Winning in the sense what? Anything, everything we do, it should be a winning proposition for both. Let's say we ओके are working in corporate world, it should be for our company as well as our customer. If I'm if I am into a social service or citizen service, it should be for the government and for the people, right? So how we can या create that winning attitude so that today's students, they will actually prepare themselves for a better corporate employee, or maybe a better citizen, right? राइट। तो अगेन अगेन दामू भाई, इसमें मैं अपना ही एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव Absolutely. आपसे शेयर करता हूँ कि विनिंग एटीट्यूड हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को उस मोड में ले जाएं कि हम ये सोचे कि आई विल ऑलवेज विन। तो इसके लिए सबसे पहले सेलिब्रेशन जरूरी है मेरे हिसाब से, कि Absolutely. सेलिब्रेट करना सीखना होगा हमको, कि आई विल सेलिब्रेट। और दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काम जो भी हम करते हैं उसको छोटे छोटे चंक में करें। हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट एक बार में ही नहीं करें, छोटे छोटे टुकड़े में काम करें। और ये मेक श्योर करें कि जो भी आज हमारा प्लान है, अगर 5 काम है हमारे पास, तो वी हैव टू प्लान कि इस 5 काम में हम 2 काम कर सकते हैं, तो 2 को ही हम अपने लिस्ट में रखेंगे। आज का दिन मेरा ये 2 काम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये 2 काम भी टफ होगा, तो आप 1 काम ही लिखिए अपने लिस्ट में। और एक आई विल टेक वन स्टेप बैक, कि हमको स्टार्ट करना चाहिए हमें एक टू डू लिस्ट से। हाँ अपने जी, पास ऑलवेज मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का कागज होना चाहिए, जो ये जो absolutely. हमारा To do list. ये जो होता है स्टिकी नोट्स या कुछ इस तरह हाँ का, जी, हाँ जी, एंड पेन ऑलवेज अपने पास होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट्स के पास होना ही चाहिए। कोई भी थॉट आया, लिख लिए। लिख और दी। एवरी मॉर्निंग आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर मोर देन 20 years नाउ। एवरी मॉर्निंग मैं अपने काम का लिस्ट बनाता हूँ, एक यस, ऑफिशियल आज का काम, क्या एक करना है? पर्सनल काम का लिस्ट। हम्म, तो मैं उस काम से जाता हूँ साथ में, कि अच्छा आज मुझे 10 काम है, इस 10 में से मुझे 5 कंप्लीट करना ही है एट एनी कॉस्ट। हम्म। तो सबको मैं यही बोलता हूँ कि आप छोटे छोटे चंक में बनाइए। अगर आपको लगता है 5 नहीं कर सकते हैं, तो आप 3 ही काम लिखिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप Important. जितना लिख रहे हैं वो Absolutely. कंप्लीट हो। तो जब ये कंप्लीशन आप देखने लगेंगे अपने काम के लिस्ट का, तो आपके अंदर वो हैप्पीनेस आएगा कि अच्छा, जितना भी मैंने काम लिखा करना था, आई हैव है। कंप्लीटेड टुडे। और उसको सेलिब्रेट करें, छोटा छोटा छोटा। जो विनिंग मोमेंट होता है उसको सेलिब्रेट करें। आज मैंने ये काम कर लिया है, चलो आई एम हैप्पी। Hey, I did जैसे it. भी आप, Yeah. यस, जैसे भी होता है हम सेलिब्रेट करें। तो ये सेलिब्रेशन, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है विनिंग मोड में जाने के लिए, विनिंग एटीट्यूड को कैरी करने के लिए। क्या है कि आपको टू डू लिस्ट, अपने काम का लिस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, राइट? हम्म। तो वो टू डू लिस्ट लिखना चाहिए, और उतना ही लिखना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा लिस्ट लिख लिया और नहीं कर सक रहे हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, राइट? इंस्टेड Absolutely, ऑफ गोइंग absolutely, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, यू विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव। absolutely, absolutely. मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि कम ही हाँ, लिखें। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी, आप बोलिए। हाँ, न न न वही मैं बोल रहा था, कम ही लिखें, absolutely, लेकिन कंप्लीट करें उसको। ये absolutely. यही यही मेरा कहना है इस पे कि Agree, agree. I always say even same thing. Tiny, tiny things हम बोलते हैं ना यूएस में,
और स्मॉल थिंग्स, छोटा छोटा चीज में खुश रहना सीखिए, दैट इज अ राइट पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं तो बोलता हूँ कि ये तो एक ही दुनिया, एक ही लाइफ है मिला है, यू नेवर नो, वी बिलीव दैट वी विल अगेन टेक रीबर्थ, इन सनातन धर्म, राइट? बट हु राइट सीज, आई मीन, राइट? कैसे पता चलेगा कि सेम दामा विल बिकम ए श्यामा नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ, राइट? सो मैं यस तो बोलता हूँ इट्स ए एग्जैक्टली वंडरफुल वर्ल्ड, एक ही लाइफ मिला है, जी भर के जी लो, राइट? एंड छोटा छोटा राइट चीज में खुशियां ढूंढते रहो एंड सेलिब्रेट लाइफ ईच एंड एवरी मोमेंट, यस राइट? एंड या और वेल सेड, या इस बात पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं दामू भाई, एंड यू हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट कि मैं सोचता हूँ ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, और जब मैं घूम के देखता हूँ तो यू हैव डन एवरीथिंग, नहीं ऐसा यू नहीं हैव है। डन ऑल द थिंग्स, क्योंकि आपने वो भी पोस्ट किया है, सारा पोस्टिंग किया है, जो भी आप छोटे छोटे मोमेंट्स को आप इंजॉय करते हैं उसने उसको भी हाँ आप जी, पोस्ट करते हैं, तो वी गेट इंस्पायर्ड डेफिनेटली, यू नो। आपने 2018 में आपने मुझे इतना इंस्पायर किया है, जस्ट आई एम रिवीलिंग दैट, आपने मुझे इतना इंस्पायर किया है कि आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, कि किस डायरेक्शन में मैं थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मेरे साथ हाँ जी, कितने हाँ जी, लोग हैं, मैं क्या उनको एंटरटेन कर सकता हूँ या नहीं। मैं दामो भाई डांस भी करते हैं, गाना भी हाँ जी। गाते हैं, और ये टेक सेमिनार भी लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एड्रेस भी करते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट, खेलते भी हैं। तो यू यू आर सच एन इंस्पिरेशन। नो नो, थैंक यू सो मच, ये आपका बड़ापन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जैसे छोटा छोटा चीज से मैं बहुत शुरू से ना, बस बचपन से मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा है। सो आई ऑलवेज एंजॉय व्हाट आई डू एंड आई ऑलवेज गेट माई सेल्फ मोटिवेटेड। आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आके मुझे उठाएगा जगाएगा, नहीं है भाई। ये दुनिया हमारी ही है, ये दुनिया हमारा है, इसको आप मुट्ठी में कर लो एंड चल राइट पड़ो, उसमें क्या है ना? राइट तो नो नो, थैंक यू। एंड या आपने डांस की बात किया, ये किया क्यों मैं करता हूँ ना, बिकॉज व्हाट आई एंजॉय आई वांट टू पुट इट इन रिकॉर्ड। एंड आज राइट नहीं तो मैं कल भी तो मुझे भी वो मतलब बुढ़ापा आएगा। सो राइट आई विल चेरिश माय मेमोरी व्हिच आई हैव लेफ्ट बिहाइंड। अरे हाँ, मैं प्लेजेंटन में था, अभी मिशिगन में हूँ, मैं बेंगलोर में था, मैं भुवनेश्वर में था, हैदराबाद में था, दिल्ली में था, मेरा करियर मुंबई में शुरू किया था, सो ये सब यस जो पीछे जो हम लोग सीरीज ऑफ रिकॉर्ड छोड़ते आ रहे हैं ना, ये दिस इज ए चेन ऑफ रिकॉर्ड, नो? अगर हम लोग ब्लॉक चेन बोलेंगे तो अलग बात है, आई एम नॉट पुटिंग इट इनटू ब्लॉक चेन, सो वी आर नॉट कमिंग इनटू डीएलटी, बट ये सब सीरीज ऑफ रिकॉर्ड जो है, आप जब बैठोगे कहाँ देखोगे? बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया यू कैन गो बैक एंड सी योर मेमोरी, आई मीन ओ या आई राइट वाज देयर, या मैंने अभी या विजय जी से राइट आज बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड रहेगा, राइट? सो विजय भाई करेक्ट बात किया था हम करेक्ट उस दिन, है ना? या मेरा और एक सवाल आ रहा है, एंड वी हैव लिमिटेड टाइम, ये अनदर 5 minutes टू गो टू क्लोज दिस सेशन। तो हम लोग बहुत बात किया, स्पेशली आपका मन में भी अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। सो हम लोग बेनिफिट का बात किया, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये दोनों में थोड़ा सा कुछ आप बताएंगे? पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ इट इज? पॉजिटिव थिंकिंग है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला दाऊ भाई, सी, अगर एटीट्यूड और इस तरह के एटीट्यूड के रिलेटेड हम लोग बात करते हैं तो एवरीथिंग गोज राउंड एंड राउंड, राइट, एवरीथिंग या इज समथिंग नियर बाय वी आर टॉकिंग अबाउट। तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये क्या है? जैसे कि मैंने बोला था कि एटीट्यूड आपका सिर्फ थिंकिंग पे बेस नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते रहेंगे तो आपका एटीट्यूड एक दिन खत्म हो जाएगा, इट विल कम टू जीरो। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप एक्शन भी लेते हैं, आपके सोच के साथ थोड़ा एक्शन भी लेते हैं, तो यू विल टेक इट हायर, अपने एटीट्यूड को यू विल टेक इट हायर, और आपसे वंडर्स हो जाएंगे। पीपल विल नेवर नो कि उसने क्या वंडर कर दिया है। हम लोग फॉर एग्जाम्पल, टाइम बहुत कम है लेकिन एक एग्जाम्पल मेरे जरूर जरूर दिमाग में जरूर। अभी अभी आ हाँ जी, गया। हाँ जी, हम लोग बोलते आ रहे हैं विराट कोहली इज एग्रेसिव एग्रेसिव एग्रेसिव, हाँ क्यों? जी, उसका एटीट्यूड वैसा है। और हाँ, आपने देखा होगा कि हम्म, विराट कोहली को भी नहीं पता चला था कि जब वो 8 बॉल पे 28 रन बना दिया और इंडिया को जीत दिला दिया, राइट, पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग मैच। हाँ जी, हाँ जी, तो वो हो गया उससे, और ही ऑल्सो कन्फेस्ड कि ये मुझसे हो गया। तो एटीट्यूड अगर उसका है, तो हाँ, क्या है एटीट्यूड? मैंने पहले भी एनालाइज करके बोला था कि एटीट्यूड क्या है, जो आपको आपके जो काम करने की जो एबिलिटी होती है उसको एबिलिटी, इन्फ्लुएंस कर देता है, राइट। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, समथिंग
same thing happened with Virat Kohli, what I felt, right? Correct. And in Correct. interview, he also said that I did not know how it happened, but it happened, right? Absolutely. So इसलिए positive thinking और positive attitude दो different चीज है, लेकिन thinking के साथ अगर हम अपने actions को भी जोड़ दें, तो this attitude can do wonders. ये मेरा सोचना है. Absolutely, absolutely. ना, हम और लोग, हाँ जी. Go ahead, go ahead. एक मेरा सवाल है दामो भाई आपसे, हाँ जी, एक मेरा सवाल है कि since you have spent lot of time in IT industry, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि people freshers से लेके थोड़ा experienced people भी they get too kind, or too polite. So how important it is to be too polite to others? Do we need every time to, do we really need to be like that every time, or sometimes we need to change the gear? Absolutely, that's another good question. So I'll give you an example. So see, we are all, हमारा देखो ना, flesh, blood, है ना. अगर इसको मैं दबाता हूँ तो मुझे दर्द होता है ना. अगेन अगर हम वार्ड में भी किसी को गाली देते हैं तो वही दर्द होता है, किसी को चोट आता है तो दर्द होता है, राइट. So this, as I told, I mean, I have been telling, this is a wonderful world. 8 billion people, and out of 8 billion people, 1.4 billion people, मतलब 140 करोड़ लोग तो हमारा भारत में ही रहते हैं, राइट. एंड तो एम्पैथी एट वर्क प्लेस, या अगर आप जा रहे हो, पोलाइटनेस इज ऑलवेज आना चाहिए, इसलिए तो बोला ना, एटीट्यूड जैसे फैमिली से शुरू होता है, माँ से शुरू होता है, राइट. हाउ वी आर बीइंग अब्रॉड, राइट, अपब्रिंगिंग, राइट. उसके बाद बच्चा बाहर आता है, राइट. देन सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल, जियो कॉन्फ्लिक्ट, वार जोन जैसे अभी चल रहा है, राइट. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, राइट. ये बहुत सारा फैक्टर है, एक आदमी का ऊपर टोटल ये करने के लिए. तो मैं कहना चाहता हूँ कि यस, बी पोलाइट एंड बी हम्बल, शो एम्पैथी, एंड व्हेनेवर यू स्पीक, प्लीज बी रेस्पेक्टफुल. इफ यू आर स्पीकिंग टू समबडी, सम सीनियर, बी रेस्पेक्टफुल. आप फ्रेंड्स के लंगोटिया यारों के साथ बात कर रहे हो, दैट आई एम नॉट टॉकिंग दैट. वो तो आप, हे आई एम दामोदर, द सेम लंगोटिया यार, विजय, मेरा गांव वाले के साथ मेरा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अलग है. But when you are coming to a social gathering, a corporate, a family function, or a organization, then you have to be respectful, be responsible, always have an open communication. बोलते रहो, don't keep anything inside you. If something is upset, you tell. Some good thing, tell. Some bad thing, please try to communicate. Right? इसलिए बोलते हैं ना, you respond with a empathy, or respond, don't react. हम बोलते हैं ना, you never, don't react. If you are reacting, means you are affecting yourself, right? So then also try to build trust among your team. Try to build trust among your family, relatives, society, right? Correct. And always, one world, one human, everything is one. So stewardship, yes. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, one nation है, जैसे हमारा अन्ना भाई बोलता है, one nation. Then nation comes first. So humanity comes first, empathy comes first, attitude comes first. Okay. Yes. So I think हमारे पास बहुत कम है कोई. So Vijay bhai, I think any concluding one line if you want to say about attitude? Attitude is God. Just carry with you. Super. Attitude for me, attitude is the way I look at, the way I think, right? The way I respond.